ओके, सो थोड़ा सा गाइड कर सकते हो इन वर्चुअल मशीन क्या क्या एक्टिविटी हमने परफॉर्म की थी? व्हाट अबाउट अवेलेबिलिटी सेट वगैरह के बारे में बात की थी क्या? अवेलेबिलिटी सेट हमने नहीं, हमने ये चीज फर्स्टली हमने डिस्कस किया था कि अवेलेबिलिटी सेट क्या है, अवेलेबिलिटी जोन क्या है। उसके बारे में आपने बोला था कि वी विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन। नहीं, अवेलेबिलिटी सेट एंड अवेलेबिलिटी जोन जो वर्चुअल मशीन तैयार करते समय, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस यस, पर्टिकुलर ऑप्शन, ये दोनों के बारे में यस, यस, या, वी डिस्कस्ड राइट? यस। थोड़ा सा गाइड करोगे इनका यूज क्या है, अवेलेबिलिटी सेट या जोन क्यों कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है? तो दिस इज फॉर लाइक से इन केस अगर हम ये लेते हैं, इफ वी टेक द ऑप्शन ऑफ नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, सो व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ फेलियर। अगर वहां पे कुछ मे बी नेचुरल कैलेमिटी हो जाता है या कुछ पावर फेलियर हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, देन वी विल लूज आवर डेटा। सो इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी सेट, तो क्या होगा कि वहां मतलब ऑन दैट सेम डेटा सेंटर वी विल हैव our virtual machines on different racks in the same data center. And in case if there is a power failure, it will we will we can use that we can use that to start our virtual machines and continue work. But it won't help in case of whole data center failure. But in case of ability zones, Azure has like in same region they have different data centers, so we can have a replica of our virtual machines in different data centers which we can use in case of a data center failure. Right. So, okay, fine. So, in case of availability zone, in availability set, uh, एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे मल्टीपल डेटा सेंटर हमें मिल जाते हैं, मल्टीपल डोमेन्स मिल जाते हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट अवेलेबिलिटी All जोन्स, domain and update domains, yes. फॉर डोमेन एंड अपडेट डोमेन, राइट? ठीक है, so what about zone? Zone में we will get like we our virtual machines will be replicated in different data centers in the same region. So उसके अंदर क्या होगा कि suppose अगर पूरा data center failure हो जाता है, like they'll be like miles apart in the same region. So in case of natural calamity or anything, so पूरा data center failure हो जाता है, then we can fail over to the another data center. So we will not have any lose. We will not lose any information, any virtual machines. They'll be intact. Right. So, in case of natural climates, we are able to protect our virtual machine by choosing the option of zone, availability Yes, zone. and both come with a charge. Correct. Fine, fine, fine. So, do one thing. I'm just going to create a one virtual machine without availability set, uh, because you know that it will charge us. क्योंकि जितना भी हम बैकएंड में सेटअप, जितने भी फॉल्ट डोमेन अपडेट करेंगे, जितने भी फॉल्ट डोमेन रखेंगे, अकॉर्डिंग टू द फॉल्ट डोमेन वी नीड टू पे अमाउंट, राइट? And I think we also discussed about the concept of NSG, Network Security Group. Yes. So network security group के केस में क्या होता है? It works just like a virtual firewall. With the help of a network security group, we are able to protect our system from inbound and outbound role. With the help of inbound and outbound role, right? Yes. Fine. So in case of inbound, if you are to distribute the services from your machine to outside network, इस केस में inbound लगेगा. If you want to access the service of outside of server to your machine, उस केस में फिर हम outbound का इस्तेमाल करेंगे. Is it correct? Yes. Fine, fine, sir. So now today we'll discuss about the disk management. So I think हमने ऐसा कुछ discuss नहीं किया था related to the disk management, या कुछ discussion हुआ था about the disk management?
Azure VM Disk Management. Now, first of all, we should need to know about the package. जब भी हम वर्चुअल मशीन परचेज करते हैं, you know that you need to decide the configuration package. S1, V1, D1, like these types of package, which is responsible to define the configuration of our computer, right? Yes. We are able to create our virtual machine by choosing two different options. एक normal disk के through हम VM को तैयार कर लेते हैं, and second step is related to the small disk. So in case of normal disk, Azure will provide you 127 gig of operating system disk. और अगर हम बात करें यहाँ पे स्मॉल डिस्क से, so in case of small disk we will get a 30 gig of hard drive which is responsible to contain the operating system. Done. Next, talk about the data disk. So in case of data disk, we are able to add any kind of disk, like as we are able to add premium disk, And magnetic. SSD भी हम ऐड कर सकते हैं, and we are also able to add a HDD. बट इनमें गैप क्या है कि SSD और प्रीमियम मिनिमम जो हार्ड डिस्क कैपेसिटी रहती है मस्ट बी अ 4 गीग, लेकिन इफ यू वांट टू ऐड HDD मिनिमम हार्ड डिस्क की कैपेसिटी रहेगी 32 गीग. क्लियर? Yeah. विल आल्सो डिस्कस अबाउट स्नैपशॉट. इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अबाउट द स्नैपशॉट, हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द स्नैपशॉट फॉर आवर वर्चुअल मशीन. तो ठीक है, जैसे ही अपने पास ये VM रेडी होता है, वी विल मूव आवर सेल टू वर्चुअल मशीन प्रॉपर्टी और उसमें एक डिस्क ऐड करके देखेंगे, एंड विल आल्सो ट्राई टू कॉन्फ़िगर द स्नैपशॉट. ओके. Manjeet, जो मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, बट जो आर्किटेक्ट का जो एग्जाम रहता है 303, उसके अंदर सिक्योरिटी मेजर पोर्शन रहता है, राइट? इट्स आई थिंक 55%, राइट? 303 में नहीं 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 नहीं, 303 इज अ टोटली सेपरेट पार्ट. इट्स अ आर्किटेक्ट. हाँ, एक्टिव डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन सिक्योरिटी का एक अलग से वो है ना, AG 500. ओके. सिक्योरिटी का तो अलग से एक सर्टिफिकेशन है जिसमें रिलेटेड टू द पॉलिसीज, एक्टिव डायरेक्टरी, ये सारी चीज़ें रहती हैं. अभी कुछ तो नवंबर 21 आई थिंक वो चेंज कर रहे हैं. 303, 304, एक 305 ला रहे हैं. 30 अभी ये सभी चेंज करेंगे. ये जो एडमिनिस्ट्रेटर का है ना, इसको भी ये रिप्लेस करेंगे. इवन ये कुछ आर्किटेक्ट में भी कुछ पार्ट इन्होंने ऐड करना है, बिकॉज हर एवरी ईयर, हर साल जो है ना कुछ चेंजेस करते हैं ये. तो मे भी कुछ कंटेंट हटा करके ना कोई नया और सर्टिफिकेशन ऐड करे, क्योंकि इनका एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं ना, ये सर्टिफिकेशन से भी इनको पैसे मिल जाते हैं अच्छे खासे. सर्विस जो चल रही है, ट्रेनिंग जो चल रही है, इनसे सबसे तो पैसे आ रही हैं एक तरीके से ये. क्योंकि स्टार्टिंग की बात करें तो एज वी नो दैट कि जब इन्होंने स्टार्टअप किया था 2016 या 2015 के इसमें, तो केवल 2 से 3 सर्टिफिकेशन थे, और आज की डेट में टोटल 12 सर्टिफिकेशन हो गए, सिर्फ एज्योर की बात करें तो, अदर प्रोडक्ट की नहीं. उस टाइम पे केवल 705, 32, 33, 35 3 थे. आज की डेट में तो हर एक कैटेगरी के लिए सेपरेट बना दिया. एडमिन अलग कर दिया, आर्किटेक्ट अलग कर दिया, डेवएप अलग कर दिया, फंडामेंटल अलग कर दिया, सिक्योरिटी, डेटा सेंटर, सब टोटली सेपरेट करके 12 सर्टिफिकेशन बना दिए.
So अगर मतलब कोई आप if you have done the certification तो अगर नहीं आती है तो what will happen to the old one? I mean you have to do another one or नो नो, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है एक्चुअली। वैसे तो बोलते हैं कि इतने दिन तक के लिए वैलिड है, बट वैलिड अगर हमने सर्टिफिकेशन किया है मान लीजिए 70532 का, और इवन हमारा जो डेटा है, हमारी जो प्रोफाइल है वो माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर पे 20 परमानेंट रहेगी, एवरी टाइम रहेगी। वो उनकी हेडेक है ना कि वो प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, और जितने भी प्रोडक्ट चेंज होते हैं जो पुराने सर्टिफिकेशन होते हैं उनके पास कंटेंट ज़्यादा रहता है, नए सर्टिफिकेशन के पास कंटेंट कम रहता है। मीन्स जैसे अभी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं AG 104 पे, राइट? अगर नेक्स्ट AG 105 आया या 106 आया तो 100% इस पर्टिकुलर कंटेंट से, इस ट्रेनिंग कंटेंट से अगला आने वाला कंटेंट 100% कम होगा, कम से कम जो 10 to 15% का गैप आएगा दोनों के बीच में। क्योंकि ये क्या करेंगे ना, सर्टिफिकेशन निकाल लेंगे इसमें से, ठीक है? इसमें 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 एक सर्टिफिकेशन ये एक और ऐड करेंगे, वो स्क्वीज कर देंगे किसी। हेलो हेलो मंजू जी। हाँ जी। अच्छा, मैंने ये आपका YouTube वीडियो देखा ना, तो इसलिए फोन कर रहा हूँ। इज दिस द राइट टाइम टू टॉक अबाउट द Azure? Actually, I'm in session. I'm in session. Can I call you back at 9:30? Yeah, no problem. Thank you. हेलो। Yeah man. ठीक है, सो ओके, ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। Yeah. ओके गुड, सो वी सक्सेसफुली कनेक्टेड आवर वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ RDP टूल, और यहाँ पे देखो 127 गिग के आसपास हार्ड डिस्क मिल रही है विच इज कंटेन द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? Yes. एंड डिस्क वन टेम्परेरी स्टोरेज विच इज 8 गिग ऑफ हार्ड ड्राइव। इस 8 GB हार्ड डिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मीन्स यू कैन से दैट कंटेन अ पेज फाइल, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की पेज फाइल होती है, जो सिस्टम को के स्पीड को बूस्ट करने का काम करता है, ये बेसिकली है अपने पास, विच इज ये 8 GB के स्पेस में स्टोर रहती है। क्लियर? So अगर हम ये हमने we didn't add any disk, but if we'll add a disk like जो हमने C drive तो by default आती है, लेकिन D drive अगर ये तो Azure ने दिया, राइट? क्योंकि हमने कोई डिस्क ऐड नहीं किया, बट अगर हम ऐड करेंगे तो ये डिस्क नहीं रहेगा, राइट? अगर हम कुछ स्पेस के साथ ऐड करेंगे। नहीं 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 नहीं, अगर हमें हार्ड डिस्क, देखो दो ऑप्शन हो सकता है, एक तो ये कि C ड्राइव की स्पेस को इंक्रीज कर लें, या फिर यहाँ पे डिस्क 0 डिस्क 1 है, एक हार्ड डिस्क हम और ऐड कर सकते हैं डिस्क 2 के नाम से। राइट, वो तो हम यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में करेंगे। व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम जब वर्चुअल मशीन बनाया था, देन वी कैन what will happen in case we add a disk at the time of creating a virtual machine. So ये तो temporary disk है, right? This temporary storage, the 8 disk 1. एग्जैक्टली, ये टेम्परेरी स्टोरेज है, बट ये परमानेंट रहेगी। एजूर कभी ये सजेस्ट नहीं करता कि आप इसमें डेटा रखिए, क्योंकि हर बारी जितनी भी बारी सिस्टम को हम रीस्टार्ट करेंगे ना, इसमें से जो डेटा होगा वो लॉस हो जाएगा। That's correct. So in case अगर हम एक extra disk add करते at the time of creation of virtual machine, हाँ, so we will get disk 2 or it will be disk 1 only. नो 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 नो, डिस्क 2, वो जो नई हार्ड डिस्क जोड़ते हैं वाइल क्रिएटिंग द वर्चुअल मशीन ना, तो वो डिस्क 2, क्योंकि ये पैकेज में आ रहा है, ये जो डिस्क 0 और 1 है ना, ये पैकेज में आएगा। बिकॉज जब हम वर्चुअल मशीन तैयार करते हैं ना, वी मस्ट नीड टू सेलेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन, राइट? सो कॉन्फ़िगरेशन में पूरी की पूरी लिस्ट मिलती है हमें कि आप कौन सा प्लान लेना चाहते हैं, कौन सा SKU लेना चाहते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट कौन सा चाहिए आपको, साइज कॉन्फ़िगरेशन का क्या चाहिए। लेट मी शो यू। जैसे यहाँ पे है, दिस इज द साइज ऑफ आवर वर्चुअल मशीन, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ऑल द साइज, और अब देखिए यहाँ पे DS1, D2, D2AS लाइक दैट। सो दीज ऑल आर द पैकेज। और यहाँ पे देखिए टेम्परेरी स्टोरेज की कैपेसिटी सेपरेट है अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट। हमने यहाँ पे 2900 पे किया तो हमें टेम्परेरी स्टोरेज मिलेगी 7 GB की, 5000 पे किया 16 GB की टेम्परेरी स्टोरेज मिलेगी, राइट? तो ये टेम्परेरी स्टोरेज तो रहेगा, नो मैटर हम कितनी नंबर ऑफ हार्ड डिस्क अटैच कर दें, एडिशनल कितनी भी हार्ड डिस्क अटैच कर लें, लेकिन ये टेम्परेरी तो रहेगा जब भी हम वर्चुअल मशीन रेडी करेंगे तो। ओके, क्लियर? सो दिस इज डिस्क 1, दिस टेम्परेरी स्टोरेज इज डिस्क 1। दिस, हाँ यस, डिस्क 1 को हम टेम्परेरी स्टोरेज बोलते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द पेज फाइल।
Clear? Yes. ठीक है. सो नाउ वी आर एबल टू फाइंड द टेम्परेरी स्टोरेज. यहाँ पे कोई भी हमें पर्सनल डेटा नहीं रखना है, बिकॉज अगर गलती से भी सिस्टम रीस्टार्ट हो गया तो जो भी डेटा रहेगा वो इरेज हो जाएगा. राइट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे हम एक और हार्ड डिस्क ऐड करते हैं और देन विल ट्राई टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क स्पेस एंड विल ट्राई टू टेक द स्नैपशॉट. सो हार्ड डिस्क ऐड करने के लिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप यूज़ करना है. वी नीड टू ओपन अवर वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टी, क्लिक वेब, जो भी वीएम हमने तैयार किया है, एंड वी आर एबल टू फाइंड ऑप्शन डिस्क. डिस्क पे क्लिक करने के बाद वी आर एबल टू फाइंड टू मोर ऑप्शन, क्रिएट एंड अटैच न्यू डिस्क, अटैच एन एग्जिस्टिंग डिस्क. सो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट एंड अटैच न्यू डिस्क पे क्लिक करेंगे. टाइप द नेम ऑफ डिस्क, तो एक्स्ट्रा डिस्क यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं नाम. एंड अबाउट द कैपेसिटी, तो 4 GB मिनिमम, प्रीमियम अगर हार्ड डिस्क जोड़ रहे हैं तो. और अगर हमने यहाँ पे HDD प्लान किया, हार्ड डिस्क प्लान किया, तो मिनिमम हार्ड डिस्क की स्पेस 32 होनी चाहिए. सो आई एम गोइंग टू ऐड अ SSD. यहाँ पे हम SSD हार्ड डिस्क ऐड करते हैं और इसमें जो कैपेसिटी है वो रखते हैं 10 GB के आसपास. क्लियर? एंड क्लिक सेव. 10 GB की हार्ड डिस्क अटैच करने के बाद हम इसको पेज को कर देते हैं सेव. वी आर एबल टू फाइंड वन मोर हार्ड डिस्क. यहाँ पे ब्लैंक एक डिस्क 2 आ गई है. जस्ट नीड टू राइट क्लिक, इनिशियलाइज, और इसको हम क्रिएट कर देंगे. नाउ वी आर एबल टू फाइंड वन मोर हार्ड ड्राइव, डिस्क 2, और इसमें 10 GB का स्पेस हमने डिसाइड किया था. वी आर एबल टू अपलोड एनी डेटा. यहाँ पे हम कोई भी डेटा या कोई भी फाइल रख सकते हैं. हेलो, कैन यू हियर मी? Yes. ठीक है. यहाँ पे हमने 10 GB की हार्ड डिस्क अटैच की एंड वी आर एबल टू फाइंड इन आवर वर्चुअल मशीन. नाउ अनदर स्टेप. सो आई होप यू हैव आइडिया अबाउट द स्नैपशॉट. Yes. ओके, ठीक है. सो व्हाई वी नीड टू कॉन्फ़िगर स्नैपशॉट? सपोज कल को हमारे को सेम वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, so we can keep a snapshot and then उसके अंदर से we can use it to create a new virtual machine. और हमें एक रेप्लिका बनाना है नया वाला, या एक और नया वर्चुअल मशीन बनाना है, या इसको स्नैपशॉट ये खत्म means once you take a snapshot, I think you cannot use that existing virtual machine, right? So you can use that snapshot to create a new virtual machine. नहीं, वी टॉक अबाउट द डिस्क स्नैपशॉट. जो अभी हमने डिस्क 10 GB की बनाई है, इसका स्नैपशॉट क्या क्रिएट करके हम मल्टीपल डिस्क बना सकते हैं? Yes. So okay, sorry. That was the disk snapshot. Okay. Yeah, we can create a snapshot. We can take a snapshot which is like a backup of the disk.
हम्म। and we can keep it like say कल को हमें इसको I mean हमें कहीं और यूज करना है या we want to keep the backup कि हमारा डेटा लूज ना हो, so we create the snapshot. राइट। सो अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, तो we have a various way to take the snap, we have a various option to configure, reason to create the snapshot। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर वर्चुअल मशीन, वी हैव अनदर VMs एज वेल, मल्टीपल वर्चुअल मशीन हमने क्लाउड पे तैयार कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल इस सिस्टम में हमने एक हार्ड डिस्क अटैच की विद कैपेसिटी ऑफ 10 GB, एंड वी अपलोडेड मल्टीपल डेटा इन 10 GB। पूरा का पूरा हमने स्पेस इसमें फिलअप कर दिया। इट मे बी 100 GB या 200 GB, पूरा स्पेस हमने डेटा से रख दिया। एंड ये जो अदर क्लाइंट्स हैं, जैसे VM2 की बात कर लें या VM3 की बात कर लें, इन सिस्टम को भी हार्ड डिस्क चाहिए, मीन्स सेम डेटा चाहिए। जो डेटा आपने VM1 में रख रखा है, वी वांट टू शेयर विद एवरीवन, और इनको ये डेटा जो है परमानेंट चाहिए, डू नॉट शेयर विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, क्योंकि अगर नेटवर्क से हम शेयर करते हैं तो इट विल टेक मच टाइम और यहाँ पे एक डिस्क स्पेस 10 GB का कंज्यूम करेगा। सो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, वी जस्ट नीड टू टेक द स्नैपशॉट। इसका हम बना लेंगे स्नैपशॉट, और स्नैपशॉट बनाने के बाद हर एक सिस्टम में इसको कर देंगे असाइन लाइक दिस। क्लियर? Yeah. तो इस पर्टिकुलर डेटा का या डिस्क का डेटा डिस्क का स्नैपशॉट बना करके मल्टीपल कंप्यूटर्स में शेयर कर सकते हैं। तो जो इसके अंदर डेटा होगा वो ऑटोमेटिक जब भी हम डिस्क बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट, वो डेटा ऑलरेडी इसमें रहेगा। करेक्ट? Yes. ठीक है, छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है जो हमें यूज करना है टू टेक द स्नैपशॉट। राइट नाउ वी आर ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ वर्चुअल मशीन। यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्क पे क्लिक करिए क्योंकि हमें इसका स्नैपशॉट बनाना है। Yeah. क्रिएट स्नैपशॉट, टाइप द नेम ऑफ योर स्नैपशॉट, डिस्क क्लोन। ठीक है, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, फुल एंड इंक्रीमेंटल। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फुल एंड इंक्रीमेंटल? Full means कि वो at that moment it will take that full snapshot. Incremental means कि it'll keep on it'll keep on adding the data. Like वो जब disk आपका update होगा, then it'll keep on adding that data on this snapshot. करेक्ट, जो भी हम डेटा बढ़ाते जाएंगे, जो भी डेटा एडिशनल डेटा इसमें अपलोड करते जाएंगे, उनका भी एक तरीके का कॉपी बनाता जाएगा। राइट? फुल के केस में यू वांट टू टेक द बैकअप वंस, एक बार हम इसका बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, एंड उसके बाद जो नया चेंजेस होगा उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपके इस बैकअप में नहीं आएगी। अगर आप इंक्रीमेंटल बैकअप करते हैं तो जाहिर सी बात है जितने भी नए डेटा हम अपलोड करेंगे उनकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती जाएगी। राइट? So I'm going to proceed with full backup। यहाँ पे स्टोरेज टाइप सेम, स्टैंडर्ड HDD, प्रीमियम SSD और GRS जो जियो रेडिडेंट स्टोरेज रहता है। सो इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद नॉट प्रीमियम क्योंकि इसमें कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाएगा। JRS जॉन रेडिडेंट पे प्रोसीड कर देते हैं। नेक्स्ट, we don't have any kind of endpoint, we will discuss about the endpoint Azure endpoint services and networking part। तो अभी हम इसको public endpoint पे proceed करके review and create कर देते हैं। Now we successfully created our storage snapshot। अब जो snapshot हमने तैयार किया है, we just need to open the snapshot panel। सर्च पे टाइप करेंगे snapshot, और जो भी snapshot हमने क्रिएट किया है उसकी लिस्ट यहाँ पे आनी चाहिए। डिस्क क्लोन के नाम से हमने एक स्नैपशॉट बनाया था, फुल
इंक्रीमेंटल या फुल में फुल बैकअप हमने सेलेक्ट किया था. नाउ वी आर एबल टू क्रिएट एनी n number of hard disks with the help of this particular snapshot. So I'm going to create one more hard disk, one more disk with the help of snapshot. Simple सा click करेंगे and see, click on create disk. And then this disk you can we use it like when we are creating adding our disk, we can say use an existing disk. सॉरी एक बार रिपीट करिए फिर से. जो ये डिस्क बनाएंगे सो जब हम VM में ऐड करते हैं डिस्क, सो दैट ऑप्शन इज देयर राइट, यूज एन एग्जिस्टिंग डिस्क और क्रिएट एन न्यू डिस्क. बिल्कुल, वी कैन यूज दिस टू विद द ऑप्शन ऑफ यूज एन एग्जिस्टिंग डिस्क, राइट? करेक्ट. So now we just need to create a disk with name of disk 2. यहाँ पे हम create कर देते हैं review and create. We just need to change the configuration because by default SSD LR के केस में ये default 16 gig लेता है. बट अब अगर हम अपने स्नैपशॉट की बात करें तो स्नैपशॉट की कैपेसिटी थी 10 GB की, राइट? Yeah. And in performance I'm going to proceed with the default IOPS 120. ओके करेंगे, रिव्यू एंड क्रिएट. Now we successfully created our hard drive. Back to the virtual machines property. And click this size. Now we need to click on attach existing disk. हमने जो डिस्क बनाई थी, आई थिंक डिस्क 2 के नाम से बनाई थी, राइट? Not any, so we just need to refresh the page. Select your disk and save it again. Back to the Azure portal, virtual machines RDP. Now we are able to find one more disk added. Right click and make it online. Simple online. Automatically created one drive with the letter of G, and if you open it you will be get a old data. जो भी स्नैपशॉट के टाइम हमने डेटा बनाया था, डेटा इसमें क्रिएट किया था, फाइल क्रिएट की थी, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने लगेगी, राइट? So this is the concept of disk management. Any question? Any doubt? No. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं इसमें. ये तो बात हो गई डिस्क मैनेजमेंट की, इन जो कि वर्चुअल मशीन के अंदर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. एंड अनदर इम्पोर्टेंट ऑप्शन रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट, लॉक्स के बारे में कुछ हमने डिस्कस किया था क्या? सो देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉक अवेलेबल. एक है अपने पास यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लॉक, रिसोर्स ग्रुप लॉक, और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं ना तो रीड ओनली एंड डिलीट लॉक मिलेगा. क्लियर? Okay. As per the name suggests, if you don't want to transfer, if you don't want to share your virtual machine from one resource group to another resource group, अगर हमें इसको ट्रांसफर नहीं करना है, एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में हमें इसको ट्रांसफर फॉरवर्ड नहीं करना है, तो यू मस्ट नीड टू लॉक द रिसोर्स ग्रुप. क्लियर?
सब्सक्रिप्शन, अगर हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इसको ट्रांसफर नहीं करना है तो वी जस्ट नीड टू ब्लॉक द सब्सक्रिप्शन। एक सब्सक्रिप्शन से दूसरे सब्सक्रिप्शन में ब्लॉक ट्रांसफर नहीं करना है तो वी जस्ट नीड टू लॉक द सब्सक्रिप्शन वाइज। सेम रीड ओनली एंड डिलीट। तो ये एक छोटी सी सिक्योरिटी आप बोल सकते हैं, एक्सीडेंटल रिलेशन के केस से ये हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। क्लियर? Right. ओके फाइन। सो अनदर इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, अब यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है डिपेंडेंट है, बास्टियन डिपेंड अपॉन द नेटवर्क, बैकअप विच इज़ पार्ट ऑफ रिकवरी सर्विस वॉल्ट, डिजास्टर रिकवरी विच इज़ पार्ट ऑफ रिकवरी सर्विस वॉल्ट। ठीक है, तो बास्टियन सर्विस समझने के लिए वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द वर्चुअल नेटवर्क इन्वायरमेंट, कैसे हम वीनेट बनाते हैं, कैसे सबनेट डिफाइड करते हैं। तो बास्टियन का पार्ट हम डिस्कस करेंगे इन पार्ट ऑफ आवर नेटवर्किंग। क्लियर? Sure. ओके फाइन। सो बैकअप भी, बैकअप का तो सेपरेट है, बैकअप फेल ओवर और डिजास्टर रिकवरी एक ही पॉइंट में कवर हो जाएगा रिकवरी सर्विस वॉल्ट के अंदर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन है लाइक एज रीसेट द पासवर्ड। तो अगर हम यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दोनों भूल गए हैं तो वी हैव ऑप्शन टू चेंज द यूजर आईडी एंड पासवर्ड, राइट? सो यहाँ पे हम जस्ट नीड टू प्रोवाइड द यूजर नेम, कोई सा भी यूजर नेम मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई सा भी पासवर्ड मेंशन करके हम रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रीडिप्लॉय एंड रीअप्लाई। सो ये भी एक तरीके से यू कैन से दैट ट्रबल शूटिंग के पार्ट में काउंट होता है। रीडिप्लॉय विच इज Yeah. रिस्पॉन्सिबल टू, Right. अगर वर्चुअल मशीन नहीं कनेक्ट हो रहा है या वर्क नहीं कर रहा है, so we just do this, take this off. एग्जैक्टली। एंड व्हाट अबाउट रीअप्लाई? मतलब अगर नहीं चल रहा है तो we want to apply all the changes to that virtual machine, whatever we did while provisioning it. नहीं 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 नहीं, रीअप्लाई के केस में क्या होगा, कंडीशन क्या होगी? रीअप्लाई के, रीडिप्लॉय के केस में कंडीशन क्या होगी? अगर it's not working, we are not able to connect to that virtual machine. Exactly. If we are facing a problem related to the RDP, ठीक है, अगर हम उस वर्चुअल मशीन का RDP एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं जबकि हमने पब्लिक IP एड्रेस चेक कर लिया एंड 3389 पोर्ट चेक कर लिया, एवरीथिंग इज ओके, बट वी आर अनेबल टू एक्सेस द वर्चुअल मशीन, तो उस केस में हम रीडिप्लॉय कर सकते हैं। रीअप्लाई क्या होता है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू it can help us in case of your virtual machine is failed। अगर VM failed हुई मीन्स क्लियर दिखा रहा है कि इसमें VM इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो उस केस में रीअप्लाई होगा। अगर VM ग्रीन है मीन्स वर्किंग प्रॉपरली दिखा रहा है बट अनफॉर्चुनेटली RDP नहीं मिल पा रहा है तो रीडिप्लॉय करेंगे। VM ही फेल्ड दिखाई पड़ रहा है तो उस केस में हम रीअप्लाई कर देंगे। क्लियर? Right. So how do we know कि ये failed हुआ है कि I mean we have to do redeploy or reapply? ओके सी, अभी जैसे हम यहाँ पे आते हैं, प्रॉपर्टीज पे आते हैं या मेन पेज पे आते हैं, वर्चुअल मशीन के पेज पे आते हैं। सो एवरीथिंग इज ओके, वी आर एबल टू फाइंड द स्टेटस इज रनिंग। ओके, स्टेटस इज रनिंग, इट मीन्स दैट एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। और इस केस में अगर हमें RDP नहीं मिल रहा है, रनिंग के केस में, पब्लिक IP के केस में वी आर अनेबल टू फाइंड द RDP, तो उस केस में रीअप्लाई करेंगे, रीडिप्लॉय करेंगे। और स्टेटस में फेल्ड दिखाई पड़ रहा है, राइट, स्टेटस में फेल्ड दिखाई पड़ रहा है तो उस केस में रीअप्लाई कर देंगे। Okay. डन? Right. फाइन। सो नाउ ये हो गया रीडिप्लॉय और रीअप्लाई का ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल इन द प्रॉपर्टीज। तो अगर छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन कनेक्शन तो उस केस में हम रीडिप्लॉय या रीअप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट? Yes. ठीक है, नेक्स्ट चल सकते हैं आगे। Yeah. सो एज वी डिस्कस्ड, अगर हम पहले की क्लास में बात करें तो आई थिंक हमने बात की थी कि वी हैव अ वेरियस वे टू क्रिएट अ एजूर वर्चुअल मशीन, जिसमें से
एक होता है ऑन डिमांड, सेकेंड VMSS, थर्ड dedicated, and fourth one is related to the reserve. No. ठीक है. So I think we discussed about the reservation, because in case of reservation we are able to reserve our virtual machine for long time. Yes. Like अगर हमें 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल के लिए, 1 साल या 3 साल या 5 साल के लिए रिजर्व करना है, तो उस केस में हमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा और इंस्टेंस को हम लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. करेक्ट. Yep. Okay, what about dedicated? Because dedicated के केस में it's a really costly, but in case of dedicated जब आप host purchase कर लेते हैं ना, तो dedicated host के केस में it's a fully depend upon you कि जो host है उसमें कितने number of instance बनाने हैं, because आप owner रहते हैं उसमें. तो जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, स्पेशली लाइक एज बैंक्स वगैरह की बात करें, या जो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए को लेकर कंसर्न रहते हैं ना, तो उनके लिए आप बोल सकते हो, उनके लिए ये डेडिकेटेड ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है. It doesn't have a shared it doesn't share the resources. करेक्ट, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो भी हम रिजर्वेशन या फिर जो भी ऑन डिमांड मशीनें परचेज करते हैं ना, ये सभी जो है शेयर्ड रहते हैं. मीन्स n number of customer are using same data center और सेम जो होस्ट है ना, वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करते हैं. क्लियर. Yes. Okay, so next we also need to know about the concept of VMSS, virtual machine scale set. It's really important because VMSS में ही हम थोड़ा सा ऑटो स्केलिंग का पार्ट डिस्कस करेंगे. राइट. बैक टू द पोर्टल, और यहाँ पे अभी हम नीचे से इंस्टेंस तैयार किया था. सो इन केस ऑफ इंस्टेंस वी आर एबल टू क्रिएट ओनली वन इंस्टेंस एट ए टाइम, ओनली वन वर्चुअल मशीन एट ए टाइम. बट इन केस ऑफ VMSS अगर हम बात करें वर्चुअल मशीन स्केल सेट की, तो वर्चुअल मशीन स्केल सेट के केस में वी आर एबल टू क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल मशीन ऑन सिंगल क्लिक. Yeah, we can scale that based on our CPU usage. Correct. So it also give us a auto scaling part, but at a time हम multiple VMs भी तैयार कर सकते हैं. Okay. So just need to click on VMSS. It's a type of cluster, आप बोल सकते हो, एक तरीके का ये cluster रहता है जिसमें हम n number of VMs को attach कर सकते हैं, n number of virtual machines को create कर सकते हैं. Click create. And same as it is, we need to provide the resource group, और यहाँ पे VMSS name training VMSS. Select the location, so want to create in Central US location. No need to configure zone or availability set. ठीक है. यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन मोड. इस केस में यूनिफॉर्म के केस में ऑप्टिमाइज फॉर लार्ज स्केल स्टेटलेस वर्कलोड विद आइडेंटियल इंस्टेंस. दूसरा है फ्लेक्सिबल. ठीक है. जो ऑटो स्केलिंग का पार्ट है, ये अपने आप क्या करेगा, ये जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज रहेंगे, जो भी वर्चुअल मशीन हम तैयार करेंगे, उनके हार्डवेयर को ये अपने आप मैनेज कर लेगा जो लोड के अकॉर्डिंग. फ्लेक्सिबल के केस में आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन इंक्रीज होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन डिक्रीज होनी चाहिए. इन केस ऑफ CPU या रैम का यूसेज बढ़ता है या CPU का या रैम का यूसेज कम होता है, दोनों के केस में. Okay. So uniform के केस में हम we cannot decide, it will do it by itself. By itself, it is responsible to manage the configuration by self. क्लियर. तो अभी हम यहाँ पे VMSS को तैयार करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, जो हमें मीन्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट की कितने नंबर ऑफ VMs को हमें बढ़ाना है, कितने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन को कम करना है, ये हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे.
ना ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में सर्वर 2012 जनरेशन 1, और यहाँ पे भी सेम 2 कोर का सीपीयू, 4 GB की रैम, हम प्रोसीड कर लेते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड। नेक्स्ट, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस यहाँ पे। आगे नेक्स्ट अगेन, दिस इज द नेटवर्किंग पार्ट, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमने कोई भी वीनेट नहीं तैयार किया ना, अपनी तरफ से हमने कोई वीनेट नहीं तैयार किया, करेक्ट। सो वी नीड टू यूज द डिफॉल्ट वीनेट। यहाँ पे एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, लाइक एज ए वी जस्ट नीड टू क्लिक अवर एग्जिस्टिंग वीनेट। इस एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, और एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद यू मस्ट नीड टू अलाउ द पब्लिक इनबाउंड पोर्ट, ठीक है। और ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। ये पोर्ट आपको मैनुअली सेट करने पड़ेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम ये मैनुअल सेट नहीं करते हैं, तो वर्चुअल मशीन बनने के बाद हमें पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, एंड वी आर अनेबल टू एक्सेस अवर वीएम विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस। So this we have to do it even with our own VNets, or only if we have not configured any VNet? No, no, it can work. It work for both, like as a on VNet and default VNet as well, दोनों के So we लिए। have to enable the public inbound port. करेक्ट, 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 दोनों के केस में, चाहे हम अपना खुद का वीनेट बनाएं या फिर जो डिफॉल्ट ही इस्तेमाल करें, दोनों के केस में वी मस्ट नीड टू यूज द, वी मस्ट नीड टू एक्टिवेट इट, पब्लिक आईपी एड्रेस एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ओके। इनेबल कर दिया पब्लिक आईपी एड्रेस फॉर एवरी वर्चुअल मशीन, बिकॉज वी विल क्रिएट अ मल्टीपल वीएम। नेक्स्ट, दिस इज द पैनल जहाँ पे हम डिसाइड करेंगे अपने ऑटो स्केलिंग पार्ट को। राइट नाउ, हाउ मेनी वर्चुअल मशीन यू वांट टू क्रिएट? आई एम गोइंग टू क्रिएट 3 वर्चुअल मशीन। स्केलिंग पॉलिसी को हम अपनी तरफ से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, जस्ट नीड टू क्लिक कस्टम, एंड यहाँ पे समझने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्केल आउट, और यहाँ पे स्केल इन के बारे में डिस्कस करना है। सो टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस दैट वी वांट टू क्रिएट 3 डिफरेंट इंस्टेंस हम तैयार करना चाहते हैं, जिसमें से स्केल आउट की जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस 10, और सीपीयू थ्रेशोल्ड स्केल आउट में 75%, ड्यूरेशन विल बी 10 मिनट, इट विल बी इंक्रीज द वर्चुअल मशीन 1, और इसी तरीके से स्केल इन की बात करें तो 25% मिनिमम है, और डिक्रीज नंबर ऑफ इंस्टेंस डिक्रीज बाय 1। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट इट? Yes, the initial instance count, what is it? Like we are saying the minimal number of instances should be 1, but initial will be 3. So when we'll start this virtual machine, when we'll create this, by default 3 create हो जाएंगे, right? हमने ग्रुप में प्लान किया है कि वी विल क्रिएट एटलीस्ट 3 वर्चुअल मशीन। So जब minimum number of instances 1 होंगे तो क्या होगा? तो नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 1 का यहाँ पे जो मीनिंग निकल रहा है, इफ़ योर सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन, अगर जो भी आपने इंस्टेंसेस तैयार किए हैं, ठीक है, जो भी आपने इंस्टेंसेस तैयार किए हैं, अगर उन इंस्टेंस की जो रैम और सीपीयू का कंजप्शन है 25% के लेस जा रहा है, राइट, तो ये अपने आप इसमें से मशीनों को डिलीट करता जाएगा। व्हाई वी नीड टू पे? अगर हमारे वीएम्स का यूसेज नहीं है, 3 हमने प्लान किया था कि ठीक है एटलीस्ट 3 वर्चुअल मशीन जो है इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए इनफ रहेंगी, हमारे सेटअप को या जो भी हमने वर्ड वीकेंड थे, जो भी हम प्लान कर रहे हैं इसमें होस्ट करने के लिए, उसके लिए बेटर रहेगा। तो 3 हमने प्लान किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो यूसेज है ना, सीपीयू यूसेज, वो बहुत ही कम जा रहा है, मतलब 25% 20% के आसपास जा रहा है। सो 20% 25% का मतलब है कि वीएम हमारी प्रॉपर तरीके से टास्क नहीं परफॉर्म कर पा रही है, राइट। मीन्स उसको नीड ही नहीं है, उतना ज़्यादा लोड ही नहीं पड़ रहा है। सो वाई वी नीड टू पे एडिशनल अमाउंट? क्लियर? yes, so उस केस में जो है
कितनी रह जाएगी, मतलब अगर सपोज जो यूसेज है वो 10% आ गई है, हाँ हाँ। तो हमने शुरू में जब क्रिएट किए थे तो 3 हुए थे, हम्म ठीक है। हम्म। और अब हमारी जो मतलब एक टाइम ऐसा आया कि बहुत ज्यादा यूसेज हुई, देन इट वेंट अप टू 10 हाँ अकॉर्डिंग टू दिस शीट, राइट, इट वेंट अप टू 10 मैक्स। करेक्ट। अगर सीपीयू का यूसेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, सीपीयू का यूसेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम 10 वर्चुअल मशीन तक का एडिशनल ऐड करेगा। राइट 10 तो अपने पास ही है, एंड 10 वीएम तक वो एडिशनल ऐड कर सकता है। राइट, अब 10 के ऊपर भी हुआ तो उतना ही ऐड करेगा, लेकिन अगर बहुत कम हो गया तो हम्म। मिनिमम अब 3 पे रहेगा कि 1 पे आ जाएगा। नहीं, 1 पे आ जाएगा ना, मिनिमम 1 पे आ जाएगा। 3 इंस्टेंस का राइट मिलाकर के सीपीयू यूसेज, 3 इंस्टेंस का मिलाकर के सीपीयू यूसेज जो है वो 20% से नीचे जा रहा है, तो 100% जो वीएम्स बचेगी अपने पास, वो मात्र एक वर्चुअल मशीन बनेगी। जो नंबर यहाँ राइट। पे रहेगा, अगर यहाँ पे हम 2 रख देते हैं तो जाहिर सी बात है 2 इंस्टेंसेस मिलेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट 3 से हुआ था, मैक्स 10 तक जाएगा और मिन 1 पे आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्लियर? नाउ स्केल आउट, अगर सीपीयू का कंजप्शन, स्केल आउट, अगर हमारे वीएम के सीपीयू का कंजप्शन जो है 75% प्लस जा रहा है, ठीक है, एंड दिस इज द ड्यूरेशन, एंड ड्यूरेशन 10 मिनट्स। 10 मिनट या 5 मिनट आप रख सकते हो, कि कम से कम 5 मिनट तक सीपीयू का कंजप्शन, ऐसा नहीं कि 1 मिनट के लिए सीपीयू का कंजप्शन जो है 75% गया, फिर अगले मिनट जो है लेस हो गया, तो इस पर कोई भी इंस्टेंस नहीं तैयार होगा। लेकिन अगर हमारा इंस्टेंस जो है 75% प्लस 5 मिनट से ज़्यादा स्टे करता है, तो इट मीन्स दैट वो हमारा जो व्हाट वी कैन से वो हमारे इन्वायरमेंट में 3 इंस्टेंस की जगह एक और इंस्टेंस बढ़ा देगा, ताकि लोड को बैलेंस किया जा सके। करेक्ट? यस फाइन। सो एज इट इज यहाँ पे अपने पास स्केल इन की बात करें तो 25% मिनिमम सीपीयू का कंजप्शन है। अगर इससे कम हुआ तो ये एक एक इंस्टेंस को रिमूव करता जाएगा। क्लियर? यस ठीक है, 3 का प्लान करके चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एक मिनिमम इंस्टेंस एक बचेगा और मैक्सिमम इंस्टेंस जो है 10 तक जा सकता है, और ये अपने पास 75% तो पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लेस वाला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट? चलो नेक्स्ट। नो नीड टू डू एनीथिंग, रिव्यू एंड क्रिएट। ठीक है, 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। जैसे ही हमारा इंस्टेंस रेडी हो जाता है, स्केल सेट रेडी हो जाता है, वी विल डिस्कस अबाउट द स्केलिंग। तुम्हारी भी रहेगी, पता नहीं मेरे को कैसा लगेगा। पानी की बोतल दे दो। खरीदी तब तक कुछ नहीं बोलोगे, खरीदी रहने दो। क्या गेट बंद करके जाने लगते थे। सो एक तरीके के यहाँ पे क्लस्टर तैयार हो रहा है, और उस क्लस्टर में ही हमने ऑटो स्केलिंग को ऐड कर दिया। दिस इज अ क्लस्टर, मीन्स जो भी इंस्टेंस यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं, लाइक एज 3 इंस्टेंस हमने प्लान किया तैयार करने का, और जो क्लस्टर की मैक्स कैपेसिटी कितनी है, 10 इंस्टेंसेस तक इसमें, इस पर्टिकुलर क्लस्टर में बीएम्स आ सकती है। मिनिमम जो है इसकी कैपेसिटी 1। क्लियर? और इसमें हमने ऑटो स्केलिंग, स्केल आउट और स्केल इन दोनों सर्विस को अलाउ कर रखा है। सो इट मीन्स दैट मैक्सिमम इसमें इंस्टेंस बढ़ते जाएंगे अगर तीनों इंस्टेंस की कैपेसिटी, तीनों इंस्टेंस की रैम की कैपेसिटी और सीपीयू की कैपेसिटी, सीपीयू 75% गया, और रैम का भी यूसेज जो है आपका, सॉरी नॉट रैम, क्योंकि सीपीयू की जाएगा तो डेफिनेटली रैम का जाएगा, 75% प्लस गया for 5 minutes or more. अप टू 5 मिनट, राइट? Yes. तो ये क्या करेगा, एक इंस्टेंस और ऐड कर देगा। यहीं पे स्केल इन की बात करें तो
स्केल इनमें क्या होगा 25% का सीपीयू, ठीक है। नीचे जाएगा for 5 minutes then it will चारों इंस्टेंस की जो टोटल सीपीयू यूसेज है ना वो 25% से कम जा रही है, तो पहले तो क्या होगा एक इंस्टेंस डाउन हो जाएगा। अगले स्टेप में तीन इंस्टेंसेस बचेंगे, फिर से 5 मिनट तक इन तीनों इंस्टेंस के सीपीयू को कैलकुलेट करेगा तीनों का, फिर से 25% गया तीनों मिला करके, तो ये क्या करेगा फिर एक कम कर देगा, नेक्स्ट में दो ही इंस्टेंसेस बचेंगे। इसी तरीके से अगर दो का मिला करके 25% से लेस जा रहा है तो ये लास्ट में केवल एक बचाएगा, इसके बाद डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि हमने मिनिमम कैपेसिटी 1 रख रखी है, करेक्ट। मतलब कितना भी डाउन हो जाए सीपीयू कंजप्शन एक वीएम तो रहेगा रहेगा। नाउ आवर क्लस्टर इज रेडी, जो भी इसमें इंस्टेंसेस है वो रेडी हो चुका है। एंड नाउ क्लस्टर के अंदर इंस्टेंसेस दिखाई पड़ रहे हैं, सभी इंस्टेंसेस प्रॉपर तरीके से रन कर रहे हैं, राइट। ऑल इंस्टेंसेस आर रनिंग प्रॉपरली, लेकिन जाहिर सी बात है इनका जो सीपीयू कंजप्शन होगा बहुत ही कम होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है सीपीयू मॉनिटर का पैनल आने में, बट मे बी कि ये 20% से भी कम जाएगा इनका यूसेज। सो 5 मिनट वेट कर लेते हैं इसमें। ये क्या करेगा इंस्टेंस में से ना धीरे धीरे एक एक वीएम को डिलीट करता जाएगा अपने आप, बिकॉज इनका जो सीपीयू कंजप्शन है बहुत ज़्यादा है, और हमने जो इंस्टेंसेस जिस कॉन्फ़िगरेशन का रख रखा है उस कॉन्फ़िगरेशन में 2 इंस्टेंस 3 इंस्टेंस हम कोई लोड ही नहीं पड़ रहा है ना इसमें, हम इंस्टेंस पे कोई लोड ही नहीं दे रहे हैं, राइट।
एंड मीनवाइल एक इंस्टेंस का आरडीपी एक्सेस करके देख लेते हैं। हर एक वर्चुअल मशीन्स की जो पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगी सेपरेट रहेगी, जितने भी इंस्टेंसेस हैं, क्योंकि हमने हर एक सिस्टम के लिए इनेबल कर रखा है। Although we have option to access multiple virtual machine with the help of single public IP address, लेकिन उसके लिए हमें इसमें लोड बैलेंसर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पिक्चर में लाना पड़ेगा। तो एलबी वाले पार्ट में एक होता है नेट रूल। नेट रूल के जरिए एक पब्लिक आईपी एड्रेस से आप n नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को कनेक्ट कर सकते हो, n नंबर ऑफ वीएम्स को कनेक्ट कर सकते हो। और वो हम नेटवर्किंग में कवर करेंगे, राइट? हाँ, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। बीनेट पेयरिंग, लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे और एज्यूर ट्रैफिक मैनेजर, ये सभी पार्ट हमारे नेटवर्किंग के हैं। Now we successfully connected our virtual machine जो VMSS के पार्ट में आती है। I'm just going to take the RDP of another VM as well। जब तक ये डिलीट नहीं हो रही है, मल्टीपल VMs को कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज VM second। CPU यूसेज तो बहुत ही कम है, पॉइंट में है। सो VMs डिलीट होनी चाहिए अपने आप। हम्म, 31% ज़्यादा है। नहीं सॉरी, एक इंस्टेंस यहाँ पे डिलीट हो गया, राइट? यस। इवन अगर अभी भी यहाँ पे जो CPU कंजप्शन है वो 25% के लेस है ना, तो 5 मिनट में एक और दूसरी वर्चुअल मशीन भी डिलीट हो जाएगी अपने आप, राइट? लास्ट में एक इंस्टेंस बचेगा, क्योंकि हमने स्केलिंग में जो स्केल हमने सेट किया है उसमें हमने जो पॉलिसी सेट की है उसमें मिनिमम जो इंस्टेंस है वो एक है। हम अपने अकॉर्डिंग कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। मिनिमम एक है, मैक्सिमम 10 है। इन मीन्स दोनों ऑप्शन को हम कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, और यहाँ तक कि परसेंटेज को भी हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। 75% को 80%, 90% बनाना है, या 25% को हमें 10% या 5% बनाना है, तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे अपने इस स्केलिंग सर्विस को कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। सो ये ऑटो स्केलिंग की मीनिंग हो गई। वन ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑटो स्केलिंग में क्या होता है ना, एज वी नो दैट हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्लस्टर पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल VM पे। तो क्लस्टर का मतलब ये होता है कि जो चेंजेस आप अभी थोड़ी देर पहले इंस्टेंस पे कर रहे थे ना, इंडिविजुअल इंस्टेंस पे कर रहे थे, आपको वो चेंजेस पूरे इस स्केल सेट पे करना पड़ेगा। ट्रेनिंग VMSS के नाम से बनाया था। ये इंस्टेंसेस पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे एक सिंगल VM अपने पास रिमेनिंग बची है। अगर आप VM को ओपन करते हो, राइट, वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन डिसकनेक्ट एवरीथिंग एज इट इज दिखाई पड़ रहा है, करेक्ट? यस। बट अगर आपके पास VMSS में 10 कंप्यूटर हैं, 10 VMs हैं,
तो आई थिंक हर एक इंस्टेंस पे जाकर हार्ड डिस्क ऐड करना पड़ेगा। अगर सभी Yes. इंस्टेंस को 10 GB की हार्ड डिस्क रिक्वायरमेंट है तो सभी सिस्टम पे जाके करना पड़ता। तो ये ऑप्शन है मैनुअली। और अगर हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं, अगर आप ये डिस्क ऑप्शन में जा करके मीन्स BMSS के ऑप्शन में जा करके डायरेक्टली डिस्क पे क्लिक करोगे ना, तो ये यहाँ से जो हार्ड डिस्क ऐड होगी वो सभी इंस्टेंस पे हाईलाइट हो जाएगी। Okay, so ये collectively करता है VMSS because all those virtual machines are part of this VMSS. करेक्ट। But अगर we have an option to create individually as well. या ये फुली दोनों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। एज पर द रिक्वायरमेंट हम इसमें से कोई से भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स इंडिविजुअल किसी बंदे की रिक्वायरमेंट है कि मुझे हार्ड डिस्क चाहिए तो हम उसको सेपरेट प्रोवाइड कर सकते हैं। पूरी की पूरी टीम की रिक्वायरमेंट है, पूरा का पूरा टीम जो है बोल रहा है कि नहीं आई नीड टू एडिशनल डेटा डिस्क, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली इस डेटा से डिस्क पे आएंगे और जो जो भी चेंजेस करेंगे वो सबके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, राइट। Yes. एज इट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की बात करें, नेटवर्किंग की बात करें, तो जो इनबाउंड रूल यहाँ पे लगाएंगे ये आप क्लस्टर पे लगाएंगे। ये इनबाउंड रूल आपके जितने भी इंस्टेंसेस हैं, जितनी भी वर्चुअल मशीन्स लगी हैं इस पर्टिकुलर VMSS के अंदर, इस पर्टिकुलर इनबाउंड और आउटबाउंड पोर्ट को हर एक सिस्टम में देखा जा सकता है, हर एक सिस्टम में ये हाईलाइट हो जाएगा, राइट। सो कॉन्फ़िगरेशन सेम एज इट इज़ कॉन्फ़िगरेशन के केस में, लाइक एज आपने एक कॉन्फ़िगरेशन जो अभी हम अपने पास चल रहा है, 2 कोर का CPU 4 GB की रैम है, यू वांट टू इंक्रीज इट लाइक 8 GB रैम और 2 कोर का CPU बनाना चाहते हैं, तो ये जो चेंजेस होंगे ना ये हर एक इंस्टेंस पे होगा जितने भी नंबर ऑफ इंस्टेंस हमने लगा रखे हैं। क्लियर। Sure. तो ये अपने पास डिस्कशन हो गया रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट अगला जो स्टेप है वो हमें नेटवर्किंग की चीज़ें मैनेज करनी है, ठीक है। इसमें मुझे are we missing that Kubernetes का भी इसके अंदर वो रहता है एक हाँ है, कंटेंट है ना। yeah. दो कंटेंट है इसमें, Yeah. AKS और एक और है। ये है इसका कंटेनर का और क्यूबरनेटिस का। Yeah. ये दो ऑप्शन है पूरा का पूरा। और ऐप सर्विस भी है। एप्लीकेशन सर्विसेज है जिसमें .NET PHP जावा की वेबसाइट और वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे होस्ट करते हैं, राइट। Yes. तो हम यहाँ पे अभी नेटवर्किंग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि नेटवर्किंग अभी जब हम क्यूबरनेटी या फिर सर्विस ऐप वगैरह क्रिएट करेंगे ना, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा सर्विस एंड पॉइंट का। Okay. तो सर्विस एंड पॉइंट विदाउट नेटवर्किंग पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज़ यहाँ पे हमें यूज़ करनी है लाइक इज द सर्विस एंड पॉइंट, वो हम यहाँ पे पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, देन इसको चीज़ें थोड़ा आसान हो जाएंगी समझने में। क्लियर। Okay. Yeah. ठीक है, मुझे थोड़ा सा हिंट दे दो, व्हाट यू थिंक अबाउट द नेटवर्किंग। मैं कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज एज नेटवर्किंग को इस्टेब्लिश करने के लिए ये कंपोनेंट्स की डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। I hope you know about the IP address version and class. Clear है? Yeah. And range as well. Second important part है public and private IP address. तीसरा स्टेप है about subnetting and CIDR calculation. बस लास्ट स्टेप है NAT and PAT. Clear? These all are the Yes. backbone of our network environment. तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है।
Yeah, no. CIDR. I don't know CIDR. क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग जो होता नहीं है, ये 192.168.1.0/24 इसको CIDR बोला जाता है। फिर इससे हमें आईपी एड्रेस कैलकुलेट करना और सबनेट कैलकुलेट करना होता है। Yeah, वो नहीं पता। हम्म Yeah. इस पे हम लोग डिस्कस कर लें या फिर है डाउट है इसमें कुछ? Yeah, I have doubt. नो प्रॉब्लम। बाकी आईपी एड्रेस क्लास रेंज और इनमें पब्लिक प्राइवेट आईपी में कोई डिफरेंस? Public IP is basically कि if you have a private IP, no other machine can connect to your machine. So by default, like even if you like shut down your VM, there'll be a public IP for that there'll be a private IP of that VM, but public IP is gone, and then it'll give you a new public IP when you restart that when you restart that virtual machine. Or subnet is basically we are creating our own virtual network, and then we create a space inside that virtual network where we put in all our machines, all our devices in that space. राइट। सो यहाँ पे जो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज क्या होती है? 193 something. तीनों क्लास की ना, यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस होगी तो तीनों क्लास की हमें आईपी एड्रेस रेंज देखनी पड़ेगी। क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए की जो रेंज है 10.0.0.0 से लेकर के 10.255, ये अपने पास क्लास ए की रेंज हो गई। 172.16.0.0 से लेकर के 172.31.255.255 ये रेंज हो गई क्लास बी की। 192.168.0.0 से लेकर के 255.255। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी आईपी एड्रेस दिखाई पड़ते हैं, दीज ऑल आर द प्राइवेट आईपी। ये सभी रेंज आपकी मींस 10, 172 और 192, ये तीनों किसको प्रमोट करते हैं, किसको आइडेंटिफाई करते हैं? प्राइवेट आईपी एड्रेस। इसके अलावा अगर हमारी आईपी एड्रेस 192 से स्टार्ट हो रही है, 170 से स्टार्ट हो रही है, 11 से स्टार्ट हो रही है, 12 से स्टार्ट हो रही है, इवन 9 से स्टार्ट हो रही है, ये सभी कंसीडर किए जाएंगे एज ए पब्लिक आईपी एड्रेस। और पब्लिक आईपी एड्रेस जो है ओनली एंड ओनली आईएसपी, जो प्रोवाइडर है, जो कॉन्फ़िगर करने का काम करेगा, ओनली एंड ओनली आईएसपी के अलावा कोई भी इस पब्लिक आईपी एड्रेस को असाइन नहीं कर सकता। इज इट ओके? Yes. है ना? तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस की डिटेल हो गई। यहाँ पे हमने प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, लाइक एज द रेंज ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस। ना थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। IPv4 अभी करंट टाइम में हम लोग यूज कर रहे हैं, IPv वर्जन 4, एंड एज वी नो दैट 32 बिट्स का इसमें एड्रेस स्पेस है, करेक्ट? Yes. These 32 bit categorized in 4 different parts. Each and every part contain 8 bits. Yeah. अगर इस 8 बिट को हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके लिखेंगे तो इस 8 बिट की जो वैल्यू होगी लगभग ये आएगी। दिस वन इज द बाइनरी नंबर, राइट? Yeah. और ये क्या है? डेसिमल नंबर। डन। नाउ CIDR क्या कहता है? क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग। एक अपने पास एड्रेस है 192.168.1.0 और इसमें /25 लिखा है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट
सबनेट क्या मिलेगा, इसका सबनेट क्या बनेगा, और इसमें यूजेबल आईपी एड्रेस क्या मिलेगी। ठीक है, सबनेट एंड यूजेबल आईपी एड्रेस। तो सबनेट की ये दोनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, बहुत ही आसान है तरीका। दिस वन इज आवर आईपी एड्रेस, CIDR वैल्यू 192.168.1.0/25, ये अपने पास वैल्यू मिल गई। अब इस 25 को हमें करना है कैलकुलेट। कैसे? एज वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, 32, उसमें से 25 बिट हमने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिए। इसको हमें लिखना है 8 बिट प्लस 8 बिट प्लस 8 बिट, सॉरी 24 हो गया ये, 8 16 24 25, बाकी का 0। अगर इसको बाइनरी डेसिमल कैलकुलेट करें तो 255 आएगा, 255 आएगा और 255 आएगा, राइट। और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 128। कैसे? 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 5 6 एंड 7, राइट। ये सभी इक्वल टू 0। 2 रेज़ टू पावर 7 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी जो वैल्यू आएगी 128 आएगी, 4 8 16 32 64 128। क्लियर? नहीं, ये दोबारा से बताएंगे। /25 है अपने पास यहाँ पे वैल्यू, CIDR की वैल्यू, और So इस CIDR is always after slash. आफ्टर स्लैश, राइट। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 16 हो सकता है, 8 जो है मिनिमम है, और एजूर के केस में मैक्सिमम 28 है। इनके बीच में कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। Okay. And how do we calculate it? Suppose so ये जो पहले वाला है CIDR से पहले, this is an IP or what is it? सॉरी, 192.168.1.0, what is it? नहीं, दिस वन इज द आईपी एड्रेस रेंज। ये तो हम कोई भी रख सकते हैं, ये पूरी तरीके से अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। यहाँ पे तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसके केस में हमने 25 हमने कितनी आईपी रेंज रखी है अपने पास, 25 starting from 192.168.1.0. 25 आप कंसीडर एज ए सबनेट। ओके 25 एक तरीके के सबनेट की तरह काउंट करना है आपको। ठीक है, तो अभी अपने पास जो वैल्यू निकली है ये 192.168.1.0, ये आईपी एड्रेस है। सबनेट की बात करें तो 255.255.255 और लास्ट में कितना है 128, ये हमारा हो गया सबनेट। ये कैसे निकला था हमने, ये फिर से बताएंगे। ओके, सो यहाँ पे 25 है, क्लियर? 25 Okay, so 8, yeah. 25 means 8 16, ठीक है, 24 25 0, बाकी का 0 हो जाएगा ना। टोटल 32 समय करने हैं। ये टोटल कितने होने चाहिए? 32 बिट्स होने चाहिए ना IPv4 के अकॉर्डिंग। सो इसमें से 25 बिट है, यहाँ पे क्या है 25 है, तो हम उस 25 के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सॉरी नॉट 28 25। तो 25 को कैलकुलेट करने के लिए 8 फिर से 8 16 हो गए, ये 24 हो गया, और फिर ये 25, बाकी के 0। इसको हमने कैलकुलेट किया, 255 अपने आप आ गया, यहाँ पे 255 आ गया, 255 आ गया। बट इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 0 है, इसको जो हमने कैलकुलेट किया तो 128 आ गया।
क्लियर? यस, अगर ये सपोज इन केस ऑफ 25 या 15 होता, देन वी विल हैव 8 7. यहाँ पे अगर 15 होता, चलो मान लेते हैं यहाँ पे Right. 15 है, ठीक है, 192.168.1.0/15, इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, Yeah. 9 10 11 12 13 14 15, करेक्ट? 3 Yes. 3 6 3 4 Yes. 5 6 7. 7, Right. ये 8 हो गया, राइट? And then 0 0. देन ये भी 0 0 0 0 0, ये भी 0 0 0, राइट? हमें तो पूरा करना पड़ेगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 255 आ जाएगी। 255. इसको हमें करना पड़ेगा कैलकुलेट। 128 इसकी वैल्यू आएगी, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 128 64 32 है ना, ये 32 हो गया, ये फिर 16 हो गया, 8 8 4 4. 2, क्योंकि एक तो 0 है, ये तो 0 है ना, Yes. 1 नहीं आएगा। यहाँ पे 10 14 6 20 28 4 254 आई. फोर्टी फोर 6 4 10 12 14 244 आ जाएगा ये, ठीक है कैलकुलेशन, या 54 आएगा यहाँ पे, 254. ये आ गया 254, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी कितनी निकलेगी सबनेट की? 254 निकलेगी, बाकी का 0 0। Yeah. तो ये इसका सबनेट आ गया बेसिकली, क्लियर? Yes. ठीक है, अब इसमें यूज क्या होता है? राइट, CIDR का यूज क्या रहेगा इसको सबनेट से? नहीं, अब इसमें आईपी एड्रेस, जो यूजेबल आईपी एड्रेस है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसमें जो यूजेबल आईपी एड्रेस है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यूजेबल आईपी एड्रेस कितना आएगा? यहाँ पे एक आईपी एड्रेस का स्पेस है केवल, सो यहाँ पे हम 1, यहाँ पे कितना है 255, यहाँ पे कितना है 255, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उतने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस का स्पेस अपने पास है, 65,000 समथिंग आएगा। नहीं क्लियर हुआ? ओके, तो जितने 0 है उतना स्पेस आएगा, उतना स्पेस अपने पास बचा है रिमेनिंग। और यही अगर हम ऊपर वाले केस में करें जिसमें हमने 25 किया था, तो उस केस में हाँ, हमारे पास 128 आ रहा है ना, ये 128 आ गया। अब 256 में से 128 माइनस कर देंगे, तो 128 आईपी एड्रेस हमें यूजेबल पे मिल जाएगा। ये हमने माइनस क्यों किया है? क्योंकि ये टोटल स्पेस है ना, यहाँ पे ये 255 का मतलब है 0 to 255 इक्वल टू 256। 128 अपने पास आईपी एड्रेस आया, इसमें से माइनस करेंगे 128, ये एक्चुअल आईपी एड्रेस की डिटेल रहेगी। नीचे हमने मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे ऑलरेडी 256 पहले ही यूज हो चुका था, दैट्स व्हाई we didn't we are just taking whatever is left here, right? या दूसरा तरीका, मैं आसान तरीका देख लेते हैं इसमें कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये 0 है, अब जितने भी 0 है ना उनको आप ऐसे लिख दीजिए, एक यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे कितने 0 हो गए? 8 आ गया, राइट? 3 3 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 raised to power 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9,
ये 10, ये 11, ये 16। ये जो कैलकुलेट करने के बाद नंबर आएगा ना, वो हमारे लिए आईपी एड्रेस का स्पेस रहेगा। और ये जो आईपी एड्रेस स्पेस है, दैट मींस वी रिजर्व्ड इट और वी हैव दिस मच स्पेस टू यूज एनी ऑफ आवर डिवाइस। एनी ऑफ डिवाइस, दीज ऑल आर द अवेलेबल स्पेस। आप बोल सकते हो ये हमारे पास अवेलेबल स्पेस है जिनका यूज हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। एंड आई हैव वन क्वेश्चन कि सपोज दीस आर, आपने ये आईपी एड्रेस यूज किया एंड फिर सपोज ऑन ओवर द ग्लोब बहुत सारे लोग सेम आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि प्राइवेट कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। ओके, कॉन्फ्लिक्ट होता है पब्लिक। वर्ल्ड वाइड पब्लिक आईपी एड्रेस अगर एक असाइन कर दी गई तो उसका यूज वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं होगा। क्लियर? private you can use as many like overlapping IP addresses. Right. ठीक है। And CIDR we use only for mapping the IP address. Calculate the IP address. Yeah. It is a calculator method which is responsible to calculate the usable IP address and subnet mask as well. ठीक है। आई नो थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लें 5 मिनट का। Yeah. 5 मिनट में कनेक्ट होते हैं।